Question number 7. Is it true that for any two sets A and B, power set of A union power set of B is equals to power set of A union B? बोल रहे हैं कि कोई दो सेट के लिए ये क्या हो सकता है, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट A is equals to 1, 2 and B is equals to 2, 3. दो सेट है A and B, be two sets wherever these are the two sets. Now what I have to find? First of all find out P of A. P of A फाइंड करो कितना होगा। P of A क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। ओके, अच्छा सेट यहाँ पे ऑलरेडी ले लिए हैं, तो ऐसे करके सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। ठीक, तो सेट क्या होगा? A का ऑल सबसेट। सर A का सबसेट क्या होगा? सेट A इक्वल टू ये है, तो A का सबसेट क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, फिर any set is the subset of itself, 5 is the subset of any set। अब चेक कर लो 1 2, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 2 है, ठीक, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट में कितना होगा? 2 to the power m, दैट मींस 2 to the power 2, दैट मींस कितना? 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। ओके, देन power set of B is equals to what? Power set of B is equals to what? Set of 2, set of 3, set of 2, 3. Okay, then set of 2, 3 and 5. 2 elements था, 2 to the power 2, that means 4 elements power set में। अब क्या करना, निकालना है P of A union P of B। Then find it out, P of A union P of B। Union means what? Elements of P of A, elements of P of B and their common elements, but elements should not be repeated। okay, so क्या क्या elements हैं? देखो 1 है, 2, देखो 2 कॉमन है, ठीक, कोई बात नहीं, 2 कॉमन है, then 1 and 2, ओके, देन 1 अच्छा 5 देखो कॉमन है, 5 से कॉमन, तो क्या क्या हो गया? 1 2 5 हो गया, 2 कॉमन 5 कॉमन हो गया। अब बच गया सेट 3 और 2, 3। ओके, ये सेट मेरा हो गया। अब फाइंड क्या करना है? पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो सबसे पहले A यूनियन B फाइंड करते हैं। देयरफॉर A यूनियन B कितना होगा? A यूनियन B, A कितना है? ये B कितना है? तो A यूनियन B कितना होगा? 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B कितना है? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ A, पावर सेट ऑफ A यूनियन B कितना होगा? 2 to the power 3, दैट मींस 8 एलिमेंट होगा, ध्यान रखना है। ओके, अब एलिमेंट्स बनाओ, क्या क्या होगा। Therefore power set of A union B, क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? तो सबसे पहले 1 2 3, ओके, देन 1 2 1 3, ओके, देन 1 2 1 3, then 2 3, okay, 2 3, then 5, then 1 2 3 1 2 3, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब चेक कर लो, क्या बोल रहा है? पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब क्या? इन दोनों का वैल्यू क्या इक्वल है? चेक कर लो खुशी। ए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 3 यहाँ पे नहीं है, तो सीधी सी बात है ये इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। क्वेश्चन क्या बोला था? इज इट ट्रू? देयरफॉर it is false, and reason is what? This one. Okay, so pause the video to note it down. So question number 8,
show that for any two sets A and B, A is equal to this one and this one equal to this one. So we have to show two things here. दो चीज दिखाना पड़ेगा, this one and this one. So we have taken first this one. So to show this thing, ये चीज दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? What we have to do? First of all, we will show A is a subset of this one, and then in second case we will show this one is a subset of A. Okay, दो चीज दिखाना पड़ेगा. अगर A B दो सबसेट्स हैं तो क्या दिखाएंगे? दो सेट इक्वल दिखाने तो क्या दिखाएंगे? A is a subset of B and we have to show B is a subset of A. दो चीज. Okay, so first of all we are taking let X belongs to A union B, sorry, A intersection B union A minus B. Okay, so it implies what? X belongs to A union A intersection B, union means or, X belongs to A minus B. Okay, it belongs to X, it implies X belongs to A, and here intersection means what? And X belongs to B, or X belongs to A and X does not belong to B, A minus B. So X belongs to A and X does not belong to B. Okay, so from this two case, देखो यहाँ पे X belongs to A and X belongs to B, or X belongs to A and X does not belong to B. तो दो केसेस से हमको क्या शो करना है? देखो हम स्टार्ट किए यहाँ से तो हम दिखाएंगे क्या? स्टार्ट किए हैं यहाँ से तो हम दिखाएंगे क्या? X जो एलिमेंट है वो A के अंदर भी है, तब जाके ये A का सबसेट होगा. ओके, तो हमको चाहिए क्या? X दिखाना है A के अंदर है, X एलिमेंट A के अंदर है, ये दिखाना है, और श्योरली A के अंदर है, ये शो करना है. तो यहाँ पे X belongs to A and X belongs to B, यहाँ पे श्योरली हो तो रहा है कि X A में है and X B में भी है. एंड का मतलब A और B दोनों में है. या फिर अगर इस केस अगर लेंगे और, तो या फिर अगर इस केस लेंगे तो X इसके अंदर है, A के अंदर है, एंड X B के अंदर नहीं है. तो X A के अंदर तो यहाँ पे भी श्योरली है. तो इस दोनों केसेस से क्या कह सकते हैं? X belongs to A surely. That means what? स्टार्ट किए थे यहाँ से, मिलाइए. Therefore A intersection B union A minus B is a subset of A. Okay, is a subset of A. Now we have to think what? Now we have to take again let Y belongs to A. Again let Y belongs to A. Now we have to show that Y belongs to also in this set. This one we have to show. Okay, so Y belongs to A. So then we can tell what? Y belongs to B, or Y does not belong to B. देखो Y A में है तो Y हम B में ये ले रहे हैं कि Y B में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. दोनों केस है ना, या फिर Y B में रहेगा या फिर Y B में नहीं रहेगा. A में है मान लिए हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं देन Y B में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मतलब और का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है B में. यहाँ पे है ना Y belongs to B, Y does not belong to B. ओके, तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? इट्स implies what? Y belong to A, Y belongs to A, और ये पहला वाला ले रहे हैं एंड Y belongs to B, ये पहला वाला हो गया. फिर और Y belongs to A and Y belongs to does not belong to B. देखो दो चीज की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक. Y belongs to A and Y देखो, अब सोचिए कोई एंड कहाँ से आया? ये ठीक, एंड कहाँ से आया? यहाँ पे और यहाँ पे एंड कहाँ से आया? और तो था लेकिन एंड कहाँ से आया? देखो ये थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ये मान लिए कि Y A में है, और देखो यहाँ पे तो और है ही,
y a में एंड b में है, या फिर y a में है और b में नहीं है। दोनों केस लिए हैं हम। एक में क्या y a में तो पहले से था, तो हम यहाँ पे भी b में भी लिए और यहाँ पे b में नहीं लिए, दोनों केस लिए। देखो y belongs to a and y belongs to b, that implies what? That implies y belongs to a intersection b, होगा कि नहीं? and का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ओके। और y belongs to, now look at here, y belongs to a and y does not belong to b, that means what? We can tell y belongs to a minus b, a में है b में नहीं है, okay। now y belongs to a intersection b or y belongs to a minus b, that means what? We can tell y belongs to a intersection b, and or means what? Union a minus b, okay। IIHS, देखो a intersection b union a minus b, okay। that means what we can tell? It implies what? Therefore we have started with a, so a is a subset of a intersection b, okay, union a minus b. So from these two cases what you can have, suppose this one case a, case 1 and this one case 2. So from case 1 and case 2 we have what? We can have what? देखो कि ये है एक और ये है एक, okay। that means what? A is equals to directly A intersection B union A minus B. Now we will prove this part. Before the students, first of all, pause the video to note it down. Now we will prove what? We will prove A in union B minus A intersection A union B minus A equals to A union B. Okay. So first of all, let case 1. Let X belongs to A union B minus A. Okay. So X belongs to A union means or X belongs to B minus A. It implies what? X belongs to A or X belongs to B and X does not belong to A. Okay. Now what we will do? We will do the distributive method here. Distributive property. Okay. देखो distributive property कैसे लगाएंगे? X belongs to A or X belongs to B and X belongs to A. Okay. X belongs to A or X does not belong to A. देखो अब एक चीज X belongs to A और X belongs to B, तो इससे क्या लिख सकते हैं? और है A में और B में है, that means X belongs to A union B. ओके। और इसमें से क्या लिख सकते हैं? X belongs to A और X does not belong to A. That means what? Simultaneously, it can't be possible that X belongs to A और X belongs to does not belong to A. एक ही साथ ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि X एलिमेंट जो A में है फिर A में नहीं है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसे ही ये इग्नोर हो गया। तो जो पॉसिबल है वही लिए हैं, ये पॉसिबल है तो A यूनियन B। तो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? यहाँ से, और A यूनियन B मिला दिया। फोर A यूनियन B minus A is a subset of A यूनियन B। ओके। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं। जब सेकेंड केस प्रूफ करेंगे, ये तो केस 1 हो गया, अब केस 2 जब लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसका पीछे से जाके आगे जाना है। जैसे ये किए हैं, देखो y बिलोंग्स टू, अब क्या लेंगे? y बिलोंग्स टू, पहले ये लिए थे तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लेंगे, ये सॉरी A यूनियन B। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां से ठीक इसी लाइन से
सीधा एक एक लाइन करते 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 यहाँ पे पहुंचेंगे। पहले ए लाइन करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। देखो, और चेंज क्या होगा, सिर्फ एक्स के जगह में वाई लिखेंगे, बाकी बात सब कुछ सेम रहेगा। जैसे देखो, इस लाइन से जैसे यहां तक पहुंचे हैं, अब हम इस लाइन से यहां तक पहुंचेंगे, बस एक्स के जगह में वाई लिखेंगे, बाकी बात सारा कुछ सेम, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, देखो तो इसके बाद कौन सा लाइन है, ये वाला। बस x के जगह में y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ओके, एंड y बिलोंग्स टू a और y does not belong to a, okay. Now next line is what, y belong to a or y belongs to b and y does not belong to a. Then what we can write, this one, y belongs to a or y belongs to b minus a. Then I'm writing here, okay. Then y belongs to a यूनियन b माइनस ए। देखो क्या क्या किए, बस वही लाइन पीछे से जाके आगे किए। तो सबसे पहले ये लिए, देखो इस लाइन से, अगर इस लाइन से हम ये लिख सकते हैं तो इसका भी रिवर्स तो हम इस लाइन से ये भी तो लिख सकते हैं ना। इस लाइन से अगर ये आया है तो इस लाइन से भी ये लिख सकते हैं, वही किए हम। फिर इस लाइन के द्वारा देखो, अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किए थे उसको हम y माइनस ए और कॉमन ले लिए, और बाकी बात y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a, ये एक साथ रख दिए। फिर ये एक साथ है, देखो y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a, इसका मतलब क्या, b माइनस ए और y बिलोंग टू a एक साथ रह गया। तो अब देखो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b माइनस ए, दैट मींस व्हाट, और मींस व्हाट, यूनियन, वही तो किए। अब क्या होगा, ये एक ट्रिक है, ट्रिक समझो, जहां पे उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह एक बस दिखा दो तो दूसरा पार्ट जो है बस उसका पीछे से आके आगे आ जाना है, ओके। तब क्या लिखेंगे, ये केस 2 है तो केस 2 में क्या आया, देयरफॉर a यूनियन b is a subset of a union b minus a, okay. Therefore from case 1 and case 2 we have a union b minus a is equals to a union b, okay. So pause the video to note it down. Question number 9, using properties of set show that this one and this one. So first of all we are solving question number 1, okay. दो सेट को इक्वल दिखाना है, बस वही तरीका, एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, बस हो जाएगा। So let case 1, first of all case 1, let x belongs to a union a intersection b, okay. That means what we can tell, implies that x belongs to a union means or x belongs to a intersection b। दिखाना क्या है कि x एलिमेंट जो है हम ये लिए हैं, तो हमको x एलिमेंट a में है। एक्चुअली हम दिखा क्या रहे हैं कि a, यहाँ पे लिखते हैं a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a, ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कहां से किए थे, यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू a, यही मेरा लाना है। तो यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू a मिल गया, लेकिन यहाँ पे और है, तो इसका मतलब ये श्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि और ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये श्योर नहीं है। और आगे बढ़ो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू यहाँ पे a इंटरसेक्शन, दैट मीन्स एंड x बिलोंग्स टू b। Now distributive property यूज करो, x belongs to a और x belongs to a। अब यहां से and x belongs to a और
x बिलोंग्स टू b। अब देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू a या फिर और है या फिर x बिलोंग्स टू a, तो दोनों में ही तो है। x बिलोंग्स टू a इंडिकेट कर रहा है या फिर a में रहेगा, a में रहेगा या फिर a में रहेगा, बात तो एक ही है कि वो a में ही आ रहा है। एंड ये कंडीशन होगा एंड ये भी कंडीशन होगा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो यहां से श्योर नहीं आ रहे हैं हम, a में भी हो सकता है b में भी हो सकता है, लेकिन ये एंड है मतलब दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, दोनों कंडीशन सही है। तो यहां से तो हम a है ये श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो श्योर है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, मतलब दोनों ही x बिलोंग्स टू a में आ रहे हैं। तो इसमें से क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू a श्योरली। ओके आ गया। देयरफॉर a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। हो गया। अब करेंगे क्या, केस 2 लेंगे। केस 2 क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू a करेंगे। अब सेम वही चीज करेंगे, पीछे से जाके हम यहाँ पे जाएंगे, एक एक लाइन करके करके पीछे से वहां पे जाएंगे, बस x की जगह में y लिखना है। ओके देयरफॉर नाउ अब ये लाइन है, लिखेंगे ये लाइन, देखो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ओके नाउ ये लाइन हो गया, फिर ये y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके नाउ y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। एक बार चेक कर लो, ये है तो इस लाइन से हम इस लाइन से अगर ये लिख सकते हैं तो इस लाइन से भी ये लिख सकते हैं, वही किए हैं। अब y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a दोनों से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए थे, तो ये बाहर कर लिए, और y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एक साथ हो गया, a एंड था एंड यहाँ पे आ गया। ओके अब y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, दैट मींस एंड है तो इंटरसेक्शन आया, और यहाँ पे y बिलोंग्स टू a सेम, तो y बिलोंग्स टू a देखो और है तो यहाँ पे यूनियन लग गया, बस वही बात हो गया। देयरफॉर व्हाट वी कैन हैव, a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। सो फ्रॉम केस 1 एंड 2 देखो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ओके ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 we have what, directly you can write now a union a intersection b is equals to a। okay so pause the video to note it down. Now question number 2. okay so case 1, x belongs to a intersection a union b, that means x belongs to a intersection means and x belongs to a union b। okay now x belongs to a and now x belongs to a union b, that means what, x belongs to a union means or x belongs to b। now distributive property, x belongs to a and x belongs to a or x belongs to a and x belongs to b। distributive property, x belongs to a and x belongs to a or x belongs to a and x belongs to b। okay now from this case surely we can tell what, x belongs to a। okay belongs to थोड़ा समझ के लिखना, ठीक है ना, हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरा। x belongs to a surely, therefore a intersection a union b is a subset of a। ओके अब केस 2 में क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू कौन सा लेंगे, a लेंगे। अब सेम वही चीज लिखेंगे, बस x की जगह y लिखते जाएंगे, लाइन सब वही लिखेंगे।
हमको अब पीछे से आगे यहाँ पे पहुंचना है, पीछे से जाके एक लाइन एक लाइन एक लाइन करके यहाँ पे पहुंचना है। ओके, वही सब लिखेंगे, बस x के जगह में y लिखते चलेंगे। बस इस लाइन के बाद ये लाइन आएगा, y belongs to a and y belongs to a, और y belongs to a and y belongs to b, then y belongs to a and y belongs to a or y belongs to b. Okay, now y belongs to a and y belongs to a union b. Okay, union b. Now y belongs to a intersection a union b. एक बार चेक कर लो, इसी से मतलब इसी से चेक कर लो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, तो y belongs to a y पहले आ गया, एंड y belongs to a और y belongs to b ऑड में एक साथ रह गया। ये ऑड में है तो यूनियन, और यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। Therefore a is a subset of a intersection a union b. Now from case 1 and case 2, what we can have, a is equals to, directly you can write a union b. Okay, so pause the video to note it down. Now question number 10, show that this condition need not imply b minus c, b is equals to c. क्या मीनिंग्स है ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये कंडीशन का मतलब b इक्वल टू c नहीं है। क्वेश्चन का मतलब है प्रूफ करके दिखाओ, ये कंडीशन का मतलब b इक्वल टू c नहीं है। ओके, क्या है ये प्रूफ करके दिखाओ, ये कंडीशन का मतलब b इज इक्वल टू c नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम a b c तीन सेट लेंगे अलग अलग, और ऐसे करके तीन सेट लेंगे जहां पे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c इक्वल होगा। ओके, तो वहां पे हम देखेंगे कि b इज इक्वल टू c है या नहीं है। ओके, सो लेट a इज इक्वल टू 1 and 2. Okay, and b is equals to what, 2 3, and c is equals to, देखो a इंटरसेक्शन b, यहां से a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, 2 आएगा। तो a इंटरसेक्शन c, a और c का इंटरसेक्शन का वैल्यू भी वही सेम होना चाहिए। तो यहां से a इंटरसेक्शन b कितना आया, 2 आया। तो हमको c ऐसे करके लेना है, a और c का कॉमन एलिमेंट 2 रहेगा, तो a और c का कॉमन एलिमेंट 2, तो यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट ले लिए। ओके, a और c का कॉमन एलिमेंट हम निकाल लिए 2, और ये दोनों दूसरा एलिमेंट ले लिए। ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। ये हमको दिखाना पड़ेगा करके। Therefore a intersection b is equals to what, 2, a और b का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2, and a intersection c is equals to what, a और c का कॉमन एलिमेंट कितना, वो भी 2 ही है, वैसे करके तो सेट लिए हैं। ओके, therefore here a intersection b is equals to a intersection c, ये कंडीशन हम दिखा दिए। अब ये कंडीशन जब दिखा दिए तब बोल रहे हैं क्या b इक्वल टू c है। अब देखो सेट b और सेट c इक्वल है, नहीं है। therefore in this case b not equal to c, b और c इक्वल नहीं है। so therefore a intersection b a equal to a intersection c need not imply b is equals to c. Okay, so pause the video to note it down.